Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, how are you all? Hoping all of you are fine and doing well at home. Well, beta, as we are reading our third chapter, that is why boys fail in college, we will continue the same chapter and we will try to cover the last paragraphs of this chapter. As I have told you earlier that in this chapter, the writer Herbert E. Hawks, he has enumerated, he has told us about different reasons for the failure of students in college, and he did not describe about the girls separately, rather he talked only about the boys. And he enumerated the reasons. The reasons included like the students who develop sort of nervous habits and who remain uneasy, they do not concentrate on their studies, and as a result they fail. So they have to they have to overcome their nervousness, they have to overcome their uneasiness and restlessness, and they have to develop a sort of balance in their work, they have to develop a sort of poise in their work, and they have to suppress this frigidity or these sort of nervous habits. Only then they would be able to do something worthy during their studies. Then we come to know about a type that is another cause for the failure of student, that is the mistaken ambition on the part of the parents of the boy for their sons. So eventually they do not perform well in the fields or in the subjects which are selected for them by their parents and fail. So parents should give liberty, a choice to the students, to their sons to select the profession and the subjects of their choice. Similarly, we see the bright boy. The bright boy is the one who thinks that with little effort he would be able to go through the examination, and he doesn't concentrate properly on his studies and fail. Such a boy also needs to rectify his ways. He also needs to develop a set of habits, or he has to change his behavior to do something worthy in life. Then we see that the poor mental and physical health, these things also hinder the way to proper attention towards studies. And so the writer is of the opinion that there must exist a sort of cooperation between the teaching staff and also the doctor of the college, so to know about to reach to the diagnosis of certain diseases of the students. Then we see another reason which has been discussed by the writer is like that sometimes the financial pressure or the poor financial positions, it also affect the studies of an intelligent student, the student who is aspiring, the student who is ambitious to do something really worthy or to continue his studies. He feels himself unable to do so because of lack of finance, due to lack of money. So we see in today's lesson we will see that how the dean of the institution can alleviate such positions or such cases, or how can he help out the students in by providing him different aids like stipends and scholarships to continue his studies. जी बेटे, तो आज ही वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, इसमें हम लोग रीज़न्स डिस्कस कर रहे हैं कि लड़कों के कॉलेज में फ़ेल होने की जो मुख्तलिफ़ वजूहात हैं उनके बारे में इस लेसन में डिस्कस किया गया है। अभी जो हम पेज नंबर 9 पर लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहे थे उसे आज लेके चलते हैं और देखते हैं मज़ीद हमें क्या चीज़ें बताई जा रही हैं, क्या चीज़ें हमसे शेयर की जा रही हैं। Nevertheless mean however, many boys are cast entirely on their own resources. Cast mean thrown, डाल दिया जाना, entirely mean completely, thoroughly, fully, मुकम्मल तौर पर, on their own resources for their college expenses. तो क्या है, the same thing we see that many of the students are forced by their parents to earn during their studies, and it is always to the detriment of their health or the value of their education, or both. Detriment means damaging damaging to the health. So these things
is really very much damaging, not only for the health of that student, but it also has a bad influence or impact on the studies as well. कि इससे अगर एक बच्चा जो है उसको फोर्स किया जा रहा है कि वो अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए जो वो खुद अर्न करे, तो अर्निंग के दौरान क्या है कि उसकी हेल्थ जो है वो भी पुअर हो सकती है, हेल्थ पे वो कंसंट्रेट नहीं कर सकता और एक बैलेंस नहीं रख सकता अपनी पढ़ाई में और उस जॉब में, और इस तरह से उसकी सेहत को भी नुकसान पहुंच रहा होता है और स्टडीज़ इट्स ऑल्सो एट स्टेक, और जो स्टडीज़ है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाती. एनी बॉय कैन अर्न अ पार्ट of his expenses without hurting himself, and in my experience many boys are willing to earn more than their share in order to save the burden of their families. The writer is of the opinion that many boys are having that potential, many boys are having that courage, or many boys are bold enough to not only to earn to fulfill the expenses of their studies and to get food and stationery and to pay fee, etc. Rather they are having they are valiant, they are bold enough, they are brave enough to earn for their to earn for their families at the same time. कि बहुत से बच्चों में ये potential होता है और they are confident enough to perform this dual duty, like they continue their studies in a college and they also continue their part time job somewhere. तो ये बच्चों में बहुत पोटेंशियल पाया जाता है कि वो चीज़ों को बैलेंस रख सकते हैं, वो अर्निंग भी करते हैं और साथ साथ वो अपनी स्टडीज़ को भी बरकरार रखे हुए हैं. They are also sharing the burden of their families apart from fulfilling their कॉलेज एक्सपेंसेस कॉलेज के एक्सपेंसेस के साथ साथ वो अपनी फैमिलीज़ को भी देख सकते हैं. ठीक है जी. तो मज़ीद देखते हैं रादर, बल्कि वो बच्चों को अप्रिशिएट कर रहा है. अच्छा, एक चीज़ है कि व्हाट आर द डिफरेंट जॉब्स वी सी दैट सम स्टूडेंट्स डू टू अर्न मनी. कौन कौन सी डिफरेंट जॉब हो सकती हैं. समटाइम्स दे हैव टू गिव ट्यूशन्स at homes, or sometimes they have to do part-time jobs in some offices outside home. बाज़ दफ़ा वो ऑफिस में काम कर रहे हैं, एकेडमीज़ में काम कर रहे हैं, ट्यूशन सेंटर्स पे काम कर रहे हैं, घर जाके ट्यूशन जो है प्रोवाइड कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग मनी टू फुलफिल देयर एक्सपेंसेस. But to see boys by the dozens here mean in large number take jobs lasting mean continuing from 6 o'clock in the evening till 2 in the morning, 6 days in a week, to see boys undergoing transfusion of blood. Transfusion mean transfer of blood to get money for their food and books is a heart-rending spectacle. Heart-rending here means very, very painful, very heartbreaking, and spectacle means scene. Sight, S-I-G-H-T. So here comes a question, a very important question in this paragraph, and that is, what is the heart-rending scene according to the writer. Writer के according जो है, जो most pitiable और जो heart-rending scene है वो क्या है? वो ये कहता है, to see the students working right from 6 in the evening up till 2 o'clock in the morning, and to see them working 6 days a week, and to see them undergoing transfusion of blood just for the sake of getting money for their food and books and for the payment of their fee, that all is heart-rending scene. तो heart-rending scene जो है ये क्या है according to writer? वो कहता है कि शाम 6 बजे से और लेट नाइट तक, रात 2 बजे तक आप कह सकते हैं, जब नया दिन चढ़ चुका है, तो बच्चों को काम करते हुए देखना, फिर 6 days a week, 6 दिन मुसलसल हफ्ते में काम करना. इसके अलावा अपना ब्लड जो है, उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है, दूसरों तक अपना ब्लड जो है पहुंचाना, बेचना, किस लिए? किताबों के असूल के लिए, अपने फूड के असूल के लिए, अपनी फ़ी के लिए, फ़ी अदा करने के लिए. तो ये सारी चीज़ें, ऑल दिस थिंग्स आर हार्ट-रेंडिंग सीन और स्पेक्टिकल अकॉर्डिंग टू द writer. Many of our boys of finest character
Character here means personality, and excellent ability are doing just this kind of thing. So we find certain cases in our surroundings that so many children or boys are doing the same thing, कि बहुत से लड़के हमें अपने गिरदोनवा में नज़र आते हैं, due to their financial poor positions they are doing this same type of thing. वो ऐसा ही काम कर रहे हैं, या तो अपना खून बेचा जा रहा है और किताबें हासिल की जा रही हैं, फ़ी अदा की जा रही है, या फिर हमें ये बताया गया है कि वो 6 days a week किस तरह दे आर स्ट्राइविंग हार्ड फॉर देयर लाइवलीहुड, अपनी रोज़ी कमाने के लिए दिन रात वो मेहनत भी कर रहे हैं और अपना साथ साथ पढ़ाई को भी जारी रखे हुए हैं. Many of our boys, and inevitably it is an important reason of apparent failure. Apparent mean clear, obvious, and inevitably, undoubtedly, certainly. And writer says that this is definitely the major reason for the failure of students. तो ये स्टूडेंट के फेल होने का एक बड़ा अहम सबब है कि उन पे जो जिस फाइनेंशियल पोजीशन जो उन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस दरकार है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस वो फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से तालीम जारी रखना उनके लिए मुश्किल हो जाता है. तो ये सब चीज़ें देखना बहुत तकलीफ दें हैं. मोस्ट कॉलेजेस डू. अब व्हाट इज़ द रेमेडी? रेमेडी क्या है, इसका इलाज क्या है? हाउ कैन वी हेल्प दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट्स टू कंटिन्यू देयर स्टडीज़? ऐसे बच्चों को तालीम जारी रखने में हम किस तरह से मदद दे सकते हैं, हम उन्हें कैसे असिस्ट कर सकते हैं? मोस्ट कॉलेजेस डू ऑल दे कैन विद स्कॉलरशिप फंड्स टू एलिविएट मीन टू लेसन, टू रिड्यूस, टू मिनिमाइज, कम करना दिस सिचुएशन. ठीक है जी. कहा गया है कि वी सी दैट मैनी कॉलेजेस आर रियली they have adopted such a way, or they are making efforts to alleviate these sort of sufferings and problems of the students by providing them aid through stipends, through scholarships. बहुत से कॉलेजेस में, बहुत से इदारों में बच्चों को स्कॉलरशिप दिए जाते हैं, उनको वज़ाइफ दिए जाते हैं, उनको कैटेगराइज कर लिया जाता है ताकि ऐसे बच्चों को फाइनेंशियल एड जो है वो मदद जो है वो फराहम करना मुमकिन हो सके. But even when everything possible is done, every dean who knows his student can recall many cases of boys who have been obliged. Obliged mean forced to drop out. Drop out mean to leave for the lack of little money to see them through. Here we see the writer says that still the dean or the head of the institution can recall many such cases. He can recall in his mind many such cases that how some boys had to leave the college, just had to drop out, had to leave the college just due to the lack of money, just due to having little money with them. तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को रिकॉलिंग की जा सकती है, ऐसे तमाम स्टूडेंट्स की रिकॉलिंग हो सकती है. एक डीन जो है, इदारे का सरबराह जो है, उन तमाम बच्चों के केसेस को सामने रख सकता है जिन्हें ड्रॉप आउट किया है और जिन्हें महज फ़ीस की अदायगी ना होने के सबब अपने एक्सपेंसेस जो है, अखराजात जो हैं, या लैक ऑफ लिटिल मनी की वजह से जिन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा है, कॉलेज छोड़ना पड़ा है, ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को रिकॉल करके उनकी मदद की जा सकती है. एंड the dean can be of greater help to these students to continue their studies with dignity, and by providing them some aid through these stipends and scholarships. तो इनकी मदद जो है स्टाइपेंड्स की मदद से, स्कॉलरशिप्स की मदद से बहरहाल की जा सकती है. अब एक और रीज़न जो है उसको देख लेते हैं. देयर आर ऑलवेज गुडली नंबर हियर मीन क्वाइट गुड नंबर, एक बड़ी तादाद ऑफ अंडर ग्रेजुएट्स whose heads are turned, who are vain, who are conceited, जो मुतकब्बर हो जाए, मगरूर हो जाए, and whose judgment assessment is perverted mean misled means here गुमराह हो जाना by the attractiveness mean charm, loveliness of athletic sports and literary so-called activities. So in a college we find that a good number of students they get attracted
by athletics or sports and games or other side shows or activities in a college, कि बहुत से बच्चे जो होते हैं they take extraordinary interest in these side shows and they ignore their studies. दैट इज़ नॉट गुड इंडीड, कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जब वो कॉलेज में आते हैं तो बहुत सी जो साइड एक्टिविटीज़ हैं जिसमें स्पोर्ट्स और गेम्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं कॉलेज में, तो उनमें पार्टिसिपेशन की वजह से वो मुकम्मल तौर पर पढ़ाई को नज़रअंदाज कर देते हैं और जिसकी वजह से उनके लेक्चर मिस होते हैं और लेक्चर मिस होते हैं डेफिनेटली चीज़ें समझ नहीं पाते वो बच्चे, उसको तैयार नहीं कर पाते और फेल हो जाते हैं. All of these features of college life have their place. फीचर्स मीन करेक्टरिस्टिक्स. तो हमें राइटर क्या कह रहा है कि इट इज़ वेरी ट्रू दैट ऑल दीज फीचर्स ऑफ कॉलेज लाइफ होल्ड इम्पोर्टेंस इंडीड, कि हकीकत में जो कॉलेज की तमाम ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये जो गेम्स स्पोर्ट्स हैं या साइड शोज़ हैं, बहरहाल इनकी अपनी अहमियत है एंड वी कैन नॉट नेगेट दैम, और हम उन्हें उनकी नफ़ी नहीं कर सकते. And should receive the support of those students who are interested in them, and those students who are really interested in these side shows or activities, they must participate in them. और जो बच्चे इन चीज़ों में हिस्सा लेना चाहते हैं, हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद नज़र आते हैं, उन्हें लाजमन इन चीज़ों में हिस्सा भी ले लेना चाहिए. In my experience, the awakening of a clear judgment as to what the college is for. Judgment mean here assessment, awakening mean arousing, developing. It's not as difficult as is often supposed. लेकिन राइटर ये भी कहता है कि इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट टू इनकलकेट इन द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स द वैल्यू ऑफ स्टडीज़, कि स्टूडेंट्स के जहन में पढ़ाई की जो अहमियत है, बहरहाल वो पढ़ाई की अहमियत और अफादियत का एहसास एंड द अपॉर्चुनिटी व्हाट द कॉलेज इज़ प्रोवाइडिंग टू देम, और तमाम जो मौक़े जो कॉलेज की तरफ से उसको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उनकी अहमियत का एहसास एक स्टूडेंट के जहन में डालना जो है वो नामुमकिन नहीं है. यानी वी हैव टू मेक द स्टूडेंट्स रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडीज़. Although he is taking part in games, although he is taking part in some activities, yet he shouldn't ignore his studies at any rate. किसी तरह से भी उसको अपनी पढ़ाई को इग्नोर नहीं करना चाहिए. If a boy is too much interested in these side shows mean side activities, extracurricular or co-curricular activities, he ought to get out of the main tent and become a professional. अगर वो बहुत ही ज़्यादा इन साइड शोज़ में हिस्सा लेने का ख्वाहिशमंद है और पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, तो वो मेन टेंट से इस एक्चुअल वे से वो हट जाए और प्रोफेशनल बने, अपने फील्ड, अपनी वो एक्सपर्टीज़ हासिल करने की कोशिश करे उस फील्ड में, ताकि नुमाया मकाम हासिल कर सके. But that is all the opinion of the writer. But most of them really are not, and if reasoned, debated, argued with by a friend who knows youth, teenage, and understands the importance of the college opportunity. Opportunity means chances. They will not allow themselves to be swept off their field by athletics. Swept off means stumbled. Swept off means carried away. बह जाना, किसी धारे के साथ बह जाना, डगमगा जाना. तो हमें एक और अहम चीज़ जो है वो राइटर बता रहा है कि इफ़ वी प्रोवाइड अ चांस टू दिस स्टूडेंट हु इज़ सो मच इंटरेस्टेड इन गेम्स और अदर साइड शोज, इफ़ ही इज़ गिवन अ चांस और इफ़ ही इज़ गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू एन एज फेलो हु makes him feel the importance of college studies, so definitely he will turn to right way, he will turn back to the studies rather than to be misled by athletics or such sports or games or other side activities. कि अगर ऐसा बच्चा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हम देखते हैं गैर मामूली हद तक गेम्स में या एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने की ख्वाहिश रखता है, अगर उसका डिस्कशन किसी अपने ही एज फेलो के साथ करवाया जाए, किसी ऐसे बच्चे के साथ करवा दिया जाए जो कॉलेज में मिलने वाले मौक़े और यहाँ होने वाली पढ़ाई की अफादियत को बेहतर समझता है, तो वो इस स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड बच्चे को, हद से ज़्यादा इंटरेस्ट लेने वाले बच्चे को राग़िब कर सकता है कि व्हाट इज़ द कॉलेज फॉर, कि कॉलेज जो है वो किस मकसद के लिए है और स्टडीज़ जो है वो अल्टीमेटली उसको ज़िंदगी में क्या फ़ायदा पहुंचा सकती है. तो इस तरह क्या हो सकता है कि इस तरह से वो बच्चा जो है राह रास्त पे आ सकता है और एथलेटिक्स की दुनिया में बहुत हद तक अपने आप को इन्वॉल्व करने के बजाय या गेम्स में इन्वॉल्व रखने के बजाय वो पढ़ाई की इंपॉर्टेंस को भी बहरहाल समझना शुरू कर देगा. I do not think that this sort of thing is a very serious reason for failure as to some of the critics.
of our college who see things from a distance and from a long range. So the writer is of the opinion at the same time he says that I do not think that this is one of the major reason for the failure of students in a college कि कॉलेज में फेल होने की एक बहुत बड़ी वजह नहीं है जिसे हम जैसा कि एस मोस्ट ऑफ द क्रिटिक थिंक इट टू बी, जैसे कि बहुत से क्रिटिक्स समझते हैं कि बहुत से नक्काद समझते हैं कि ये भी कॉलेज में फेल होने की एक रीज़न हो सकती है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या एक्स्ट्रा साइड शोज़ में, जो साइड शोज़ हैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेशन फेल होने की बड़ी वजह है। लेकिन राइटर कहता है मैं नहीं समझता कि दिस कैन बी काउंटेड अमंग द मेजर रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ रीजंस ऑफ द फेलियर ऑफ द स्टूडेंट्स और द बॉयज़। ठीक है, वो कहता है ये मैं ऐसे मेजर रीज़न नहीं समझता बिकॉज क्रिटिक्स एक्चुअली दे सी द थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस, they do not observe the things, they do not watch these things closely. So that is why they develop or they have their own opinions regarding the things happening in their surroundings. तो critics के नज़दीक हो सकती है, लेकिन राइटर कहता है चूँकि मैं बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ इन चीज़ों को और मैं समझता हूँ कि ये एक मेजर रीज़न फेलियर की नहीं है। जी बेटे, सेकंड लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। अ फ्यू लेजी ब्लफर्स, थोड़ी सी वर्ड्स मीनिंग की तरफ पे निगाह डालते हैं साथ साथ। बेटा देखें आपके पास वर्ड आता है डेट्रीमेंट। जी बेटे, आज के पैराग्राफ में जो हमने वर्ड्स पढ़े, डेट्रीमेंट मीन डैमेज, लॉस, इंजरी, नुकसान को कहा जाएगा। ट्रांसफ्यूशन मीन ट्रांसफ़र यानी मुंतकिल करना। हार्ट रेंडिंग मीन हार्ट ब्रेकिंग, बहुत ही दिल को अफसुर्दा करने वाला, वेरी पेनफुल, बहुत ही कोई तकलीफ दे वाक़या। इनएविटेबली, अनएवॉइडेबली, सर्टेनली यानी जिससे हम बच नहीं सकते ऐसा वाक़या और यकीनी तौर पे होने वाली कोई कैफियत, कोई वाक़या। एलिविएट मीन लेसन, ईज़, मिनिमाइज, डिक्रीज, कम करना। डीन हेड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, किसी इंस्टीट्यूशन का जो हेड है, सरबराह है। ऑब्लाइज्ड मीन इंडेप्टेड, ओव्स यानी एहसानमंद होना। ड्रॉप आउट, लीव, छोड़ देना, चले जाना। एबंडन अ कोर्स ऑफ स्टडी यानी वो जो स्टडी पीरियड है आपका, कोर्स जो है, कोर्स ऑफ स्टडी है, उसको छोड़ जाना। हेड्स आर टर्न्ड, फील वेरी प्राउड, फील वेरी पेन, फील वेरी वेन, इट मीन्स कि बहुत ही मगरूर हो जाना, तकब्बुराना रवैया कहा जा सकता है। जजमेंट इज द वर्ड हेयर एंड जजमेंट मीन असेसमेंट यानी किसी चीज़ की असेसमेंट करना, किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना। द नेक्स्ट वर्ड इज मिसलीड, we are having the second form of it's perverted, and perverted mean misled, get turned to a wrong use, गुमराह हो जाना। attractiveness mean charm, दिलकशी, किसी चीज़ में कशिश। features here mean characteristics, खसूसियात। awakening, creating awareness या शऊर बेदार करना, आगाही पैदा करना। side shows, and side shows here means games and other activities। ठीक है जी, गेम्स और इस तरह के मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को कहा जाएगा। मेन टेंट मीन मेन स्ट्रीम, एक्चुअल वे, जो सही रास्ता है उससे कहा जाएगा। रीजन्ड, डिबेटेड, इट मीन्स डिबेटेड, आर्ग्यूड, किसी से बहस करना। स्वेप्ट ऑफ, कैरिड अवे, स्टम्बल्ड, स्टैगर्ड, डगमगा जाना, बह जाना। लेजी, स्लगिश, आइडल, सुस्त। जी बेटे, ब्लफर्स हमने पढ़ा, ब्लफर्स मीन डिसीवर्स। इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, आपने यहाँ तक वर्ड्स जो हैं उसको गो थ्रू कर लिया है। नेक्स्ट पैराग्राफ की जानिब बेटे आते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ दैट इज़ द सेकंड लास्ट वन। A few lazy bluffers drift into college and usually drift out again. Drift into का मतलब to enter aimlessly, and drift out means here to go out, to leave aimlessly. So we have certain cases that some students they enter in an alma mater, in an institution without having any aim, without having any future of their own, and they leave this in the same way they leave the institution। कि बहुत से बच्चे जो है बग़ैर किसी मकसद के कॉलेज में दाखिल हो जाते हैं। मकसद क्या होता है? दे स्पेंड देयर टाइम इन गॉसिप्स, दे स्पेंड देयर टाइम इन
conversing and talking about the subjects of their own interest, about movies, about dramas, about fashions and all these things. So they keep on roaming all the time in the grounds, and they bunk their classes. In this way they enter aimlessly and they go outside the college, they leave the institution without any aim or without getting anything important. तो ऐसे बच्चे जो हैं बग़ैर किसी मकसद के ही कॉलेज में दाखिला लेते हैं और बग़ैर मकसद के ही निकल जाते हैं। पढ़ाई पे तवज्जो देना उनका मकसद नहीं, बल्कि वो अपना टाइम जो है वो बहुत ही मर्सीलेसली वेस्ट करते हैं। Most of them have not found any serious interest in life, and some of them never will. So most of these students do not have any sort of serious interest in their life, and they would never have even in future. बहुत से बच्चे में ऐसे होते हैं जिन्हें ज़िंदगी में ज़िंदगी के कोई मकसद नहीं है, उनके ज़िंदगी में कोई बाज़ाहिर इंटरेस्ट जो है उनको नज़र नहीं आती है और बग़ैर मकसद के ही वो ज़िंदगी गुजारते रहते हैं। It is usually wise to let them to leave them. Retire means also to leave something to the cold world. Cold world here means unsympathetic and harsh world for a reason, and find out by experience how much demand here is for a lazy bluffer. So what is the remedy for such students, for such lazy students who are not having any serious aim in life? The writer is of the opinion that we should leave them to the cold torrent. We should cold torrent of the world. They will learn a lesson out of the harsh and unsympathetic attitude of the world कि दुनिया ऐसे लोगों को सबक सिखाती है, ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को हालात के धारे पर छोड़ देना चाहिए। और जब वो दुनिया में कदम रखेंगे तो दुनिया का जो हार्श एटीट्यूड है, जो अनसिम्पैथेटिक रवैया है, उसकी वजह से बहरहाल ये डिसहार्ट होंगे और फिर वो रियलाइज़ करेंगे कि ज़िंदगी में एजुकेशन की कोई मकसद रखने की बहरहाल कितनी इम्पोर्टेंस है। तो दे विल लर्न अ लेसन आउट ऑफ द कोल्ड एंड हार्श एटीट्यूड ऑफ द वर्ल्ड। Sometimes they learn their lesson and return to do first-rate work. First-rate here means fine work. तो क्या है कि sometimes out of the very cold attitude of the people in the world, they come back to their studies, they come back to their actual work, and they start doing their work in a better way. They come back to their studies. तो बाज़ दफ़ा दुनिया के जो हार्श रवैये हैं उनको सिखाते हैं ऐसे बच्चों को, और वो स्टडीज़ की जानिब दोबारा से बड़ी दिलजमई के साथ, बड़ी मुस्तादी के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ लौट आते हैं। But the burden of proof is always on them to show that they mean business. मीन here, मीन का मतलब क्या होगा? एम्प्लॉय, मफहूम होना, मानी होना। तो such students themselves have to give a proof that they want to do something reasonable in life. और इन बच्चों को अपने एटीट्यूड से, अपने रवैयों से बहरहाल इन चीज़ों को ज़ाहिर करना है कि they want to do that they want to do something really important in life, and they have to work really hard to get something outstanding in their life, or to reach to the height of glory. ठीक है जी, बच्चों को ये खुद साबित करना है कि वो ज़िंदगी में अब कुछ करके दिखाएंगे। जी बेटे, लास्ट जो आपका पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ को देख लेते हैं। ऑन द होल the problem that the college dean faces calls for about the same diagnostic ability as the physicians. तो इसमें बड़ी एक अहम चीज़ हमें लास्ट पैराग्राफ में बताई जा रही है। What quality the dean of an institution should possess. एक कॉलेज के सरबराह में कौन कौन सी क्वालिटीज़ जो है वो होना चाहिए। उन्होंने सबसे अहम क्वालिटी बताई है कि द डीन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन मस्ट बी हैविंग अ डायग्नोस्टिक एबिलिटी। डायग्नोस्टिक मीन एग्जामिनिंग, कि जिस तरह एक डॉक्टर में डायग्नोस्टिक एबिलिटी होती है, वो किसी मर्ज़ की तशख़ीस करता है। डॉक्टर मर्ज़ की तशख़ीस करने के बाद उसका क्योर जो है, उसका ट्रीटमेंट जो है, उसकी ट्रीटमेंट की जानिब बढ़ता है। इसी तरह से एक डीन और द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन मस्ट बी हैविंग दैट डायग्नोस्टिक ability to make an assessment of the real problems which are faced by the student. उसमें वो डायग्नोस्टिक एबिलिटी होनी चाहिए कि वो जान सके कि बच्चों में, मुख्तलिफ़ बच्चों में किस तरह के मसाइल जो हैं, उन्हें किस तरह के मसाइल जो है वो दरपेश हैं, या किन मसाइल का सामना वो कर रहे हैं, और इसकी रेमेडीज़ जो हैं वो उसे बहरहाल तलाश करना है। इसका इलाज,
मसाइल को इन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए सॉल्यूशंस जो हैं उसके पास रेडी सॉल्यूशंस मौजूद होना चाहिए. ही इज़ हेल्पिंग द यंग men under him to see life steadily and see it a whole. Steadily mean constantly. Here we see that the dean or the teacher is playing a vital role basically in making the future or in guiding a student to the right, towards the right path. Teacher, you know, basically beta, teacher is the maker, teacher is the guiding star, and teacher basically is the torch bearer of wisdom and knowledge, and teacher is the benefactor of humanity. His sole purpose remains to help the students to reach to their goals and targets of life. तो टीचर जो है एक स्टूडेंट के टारगेट्स तक पहुंचने में, ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने में बहरहाल बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है. तो एक डीन की क्वालिटी ये भी है कि वो उन बच्चों की हेल्प कर रहा है जिन्हें बहरहाल मुस्तकबिल की बात दौड़ संभालना है. If he can save boys from failure through foolishness, sickness and sin, he is doing his part of job well. तो when is a dean doing his part of job well? डीन जो है वो अपना काम किस वक्त बेहतर तौर पर कर रहा होता है कि when he is saving, when he is protecting his students, his boys in the college from their sins, from their faulty actions, from their wrong decisions, तो only then he is performing his duty well. कि अगर वो बच्चों को इन तमाम अहमकाना हरकतों से और इन तमाम मसाइल से बचने में एक डीन मददगार साबित हो रहा है तो तभी सही मानों में वो अपनी जॉब कर रहा है, अपने फ़राइज़ से सही मानों में सुबुकदोश हो रहा है. सिर्फ उसी सूरत में वो अपनी ज़िम्मेदारी जो है सही तौर पर अदा कर रहा है. जी बेटे, ये लेसन हमने आज पढ़ा, तफसील से पढ़ा, मुख्तलिफ रीज़न्स पढ़े और जो राइटर ने हमसे डिस्कस किए हैं कि बच्चों के कॉलेज में फ़ेल होने के मुख्तलिफ असबाब जो हैं वो क्या हैं. तकरीबन 6 से 7 के करीब जो हैं वो रीज़न्स जो हैं वो आपको बयान की गई हैं. अच्छा, साथ साथ मज़े की बात ये है कि साथ साथ उसने रेमेडीज सॉल्यूशंस भी दिए हैं आपको कि फ़लाँ कैटेगरी में जो स्टूडेंट आ रहा है और इसके फेलियर्स के रीज़न्स के बाद what are the remedies or how can we control such certain situations or how can we help the students in alleviating their sufferings or problems or difficulties और ऑब्स्टिकल्स इन द वे ऑफ गुड परफॉर्मेंस इन स्टडीज़. तो ये सारी चीज़ें आपने बहुत डिटेल से पढ़ी हैं. बेटा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. वी विल नाउ टॉक अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन. द एक्सरसाइज डेफिनेटली इंक्लूड नॉट ओनली द वर्ड मीनिंग और द सिनोनिम्स यू कैन से बट ऑल्सो द क्वेश्चन आंसर्स. तो वी विल डू सिनोनिम्स टुडे. वी विल ट्राई इंशाल्लाह टू मैनेज विद इन गिवन टाइम. हमारे पास जो टाइम लिमिट अवेलेबल है उसमें ही इनको करने की कोशिश करेंगे. तो मैंने आपसे कहा कि जो आपकी टेक्स्ट बुक है हर लेसन के एंड पे क्वेश्चंस मौजूद हैं. तकरीबन 7 से 8 की तादाद में क्वेश्चन हर चैप्टर के एंड पे भी मौजूद हैं. उसके अलावा बेशुमार एडिशनल क्वेश्चन जो कि उसी लेसन को कवर कर रहे हैं, उसी लेसन से रिलेटेड हैं, वो सब आपके पास नोट्स के अंदर एडिशनल क्वेश्चंस की शक्ल में मौजूद हैं. उनको गो थ्रू करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है. लेकिन अभी हम लोग करेंगे इसके सिनोनिम्स. बेटा एक और अहम चीज़ आपसे कहना चाहूँगी कि आप जब टेक्स्ट पढ़ते हैं तो बहुत तवज्जो करें कि आप जो राइटर्स है वो क्या क्या चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा है. क्योंकि जब क्वेश्चंस आपके पास बोर्ड में आ रहे हैं या कोई भी आपका एग्ज़ाम हो रहा है और उसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड, तो इस तरह से होता है कि आपकी अपनी ओपिनियंस जो हैं वो आपसे नहीं मांगी जा रही, बल्कि हमें आपके जो पेपर चेकर है उसको ये देखना है कि आपने किस हद तक टेक्स्ट को पढ़ा, कितनी डेप्थ में जाके चीज़ों को समझा और क्या आप वो सही आंसर उसी के मुताबिक उस टेक्स्ट से रिलेटेड जो है वो जो ओपिनियंस राइटर्स के हैं उन्हें सामने रखते हुए क्या उसी को आंसर कर रहे हैं. अगर आप उसमें अपनी राय जो है, अपनी जनरल ओपिनियन उसके अंदर शामिल करते हैं तो बेटे वो आपकी जो है क्वेश्चन की ब्यूटी को ख़त्म कर देगा और उसकी क्वालिटी को ख़त्म कर देगा और उसमें नंबर आपके डिडक्ट होने के चांसेस होंगे. तो लिहाजा आप टू द पॉइंट आंसर्स रखें एंड योर आंसर्स मस्ट कंप्राइज 3 to 5 lines. Well beta, coming to synonyms, हम synonyms की जानिब देखते हैं. And number 1 is many students have the native ability to pass. Native यहाँ पर क्या है? Inborn, natural. So we are having 4 options against this word. Your word is native and the options are active, resident, inborn and local. So your answer is inborn. The next sentence is they do not concentrate on the tasks assigned. Concentrate होता है किसी चीज़ पर focus करना and the words are focus, lay,
get through and current. So your answer is focus. Focus किसका आंसर आप दे रहे हैं जी? Concentrate का. They do not concentrate on the task assigned. Assigned mean allot करना, कोई चीज़ सपुर्द करना. तो options are developed, allotted, given up, shown. The right answer is allotted. Such nervous habits are not easy to uproot. Uproot होता है किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ना, ख़त्म करना. Illuminate, promote, cultivate, eliminate. So the answer is eliminate. Number 5. Such nervous habits cannot be eradicated by anyone. Eradicate का मतलब ही होगा ख़ात्मा करना, ख़त्म कर देना. Developed, uprooted, applied, substituted. तो eradicated means here uprooted. जी बेटे हमने 5 सेंटेंस किए नोट्स के अंदर से. जो रिमेनिंग सेंटेंस हैं इंशाल्लाह उसको भी हम लोग कवर करते हैं, उसको भी देखते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में. तो वी विल कवर द रेस्ट ऑफ द थिंग्स इन इंशाल्लाह वेरी नेक्स्ट लेक्चर. So the message of the day, the short message of the day is that the words possess a strange power. Our words can convert our soft, polite and kind words can convert our foes into our close friends. And through our soft, polite and courteous behavior and attitude or words, we can make this world like that of a heaven. So we should be very kind in our attitude towards others. Thank you very much, Peter. Take care. Allah Hafiz.